Good morning, class 10th. Welcome again, all of you, in online classes of biology arranged by our school, Little Flowers School, Madhupuram Basti. Students, we are studying life process. In life process, at the moment, we are at excretory system found in human beings. Students, this is last topic of your chapter life process, and life process is the only chapter of your syllabus of PT1, that is periodic test 1. So watch this video very carefully. Okay, students, the basic waste material which is found inside human body is nitrogenous waste material. Why it is called nitrogenous waste material? Because the waste material produced in human body is made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Since nitrogen is involved in making the waste material of human body, so it is known as nitrogenous waste material. Okay, इसका आंसर मिल गया. Now, human beings are ureotelic animals. Human beings used to excrete urea from their body, because if this nitrogenous waste material accumulate in our body for a long duration, for a long time, then it's in such condition it may harmful for our common health. Okay, so human beings are having well developed excretory system for the purpose of same, to get rid of the waste material from our body. Okay, so our main excretory organ is our excretory system. Our excretory system consists of, number 1, a pair of kidneys, number 2, a pair of ureters, number 3, urinary bladder, and number 4, urethra. These 4 organs unite together to perform as excretory system in human beings. Okay, so now come to all parts one by one. First of all, about kidneys. As you know, students, kidneys are the basic excretory organ found in human beings, and human beings are having one pair of kidneys. Out of this one pair of kidneys, both kidneys are present at the either side of our backbone. ये जो बैकबोन है हमारा, इस बैकबोन के दोनों साइड में, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ आवर बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में ये किडनी प्रेजेंट होती है. ठीक है. These kidneys are filled with very minute, very delicate structures which are known as nephrons. So nephrons are the functional unit of excretory system. इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला. इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में. एक्सक्रीशन की यूनिट क्या है, किडनी की यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट किडनी की क्या है, नेफ्रॉन क्या है. कई क्वेश्चंस ऐसे घुमा के इससे बन सकते हैं. इन एक्चुअल स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन आर द excretory units of human body. Okay, in your book फिगर नंबर 6.14 को ओपन करिए अपने बुक में. तो इन योर बुक फिगर 6.14 एक्सप्लेन्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. देखिए 6.14 में क्या है. फिगर 6.14 में एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है. हमने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि ईच नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ, क्या नाम दिया था हमने, कुछ दिमाग में आ रहा है. ईच नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, और हमने 2 नेम और लिखे थे उस दिन. हमने लिखा था प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब.
these four unite together, and Henle loop also, Henle loop 5. These 5 organs are combined together to make one nephron. ओके अब नेफ्रॉन में कहाँ किसकी पोजीशन है वो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस एक बार रिमाइंड कर दें आपको कि द Bowman capsule, this one is Bowman capsule, here it is written Bowman capsule. Inside the Bowman capsule a structure is present which is highly condensed, which is made up of very dense blood capillaries here. These tuft of capillaries, this bunch of blood capillary is known as glomerulus. तो glomerulus क्या है? ये एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल इज जस्ट अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर. दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज फिल्ड विथ bunch of blood capillaries. ठीक है, very dense bunch, very dense network is present here in the form of glomerulus. ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में इतना डेंस बंच, डेंस कैपिलरीज क्यों होती है? क्योंकि जब कैपिलरीज अधिक होंगी तो ब्लड अधिक होगा. कौन सा ब्लड? कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड. और उसी कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, उसी जेनेटेड ब्लड में से यूरिया को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना है. ठीक है, तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे है. ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड का वो आता है इस कप में, बोमेन कैप्सूल में. ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल के ट्यूब से, कन्वॉल्यूटेड ट्यूब से होकर वो चला जाता है. पहले प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब पीसीटी, फिर हेनले लूप बनता है. हेनले लूप से होकर के वो बाहर निकलता है फिर डीसीटी यानी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब से. ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये वेस्ट मटेरियल ब्लड से दूर होते हैं, बाहर फिल्टर होकर के आते हैं. तो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता होगा? इन एक्चुअल स्टूडेंट्स, कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड एंड दिस थिन वॉल इज cell membrane, and cell membrane is made up of what? Made up of bilipid protein layer. Okay, so this bilipid protein membrane act as permeable membrane. ठीक, अब इस परमेबल मेम्ब्रेन से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया है वो बाहर की सराउंडिंग में यानी ग्लोमेरुलस के बोमेन कैप्सूल के भीतर उस वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कम है. कैपिलरी के भीतर जो ब्लड है उसमें उस वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है. सो स्टूडेंट्स, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा? द वेस्ट मटेरियल यूरिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, इनसाइड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, तो वहाँ से क्या होगा? वो इट बिकम filter through the permeable membrane of blood capillaries. ये blood capillaries के thin membrane से फिल्टर होगा, फिल्टर होकर के आएगा उसका अप्लाई स्ट्रक्चर में, और वहाँ से ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब से होता हुआ जाएगा यूरेटर में. यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर से हमने आपको बताया भी है पहले, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो 6.14 जो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है 6.14, रिवाइज दिस डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक वेरी केयरफुली. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, नाउ आफ्टर दिस इन योर बुक आर्टिफिशियल किडनी इज रिटन. I think all of you are familiar about this word artificial kidney. अगर ये वर्ड नहीं सुने होंगे तो एक वर्ड जरूर सुने होंगे, डायलिसिस. डायलिसिस
लोग डायलिसिस पे, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो इन एक्चुअल स्टूडेंट्स, वो डायलिसिस वर्ड सही नहीं है, उसका पूरा नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। ओके। होता क्या है, आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है 6.15। ओपन योर बुक and observe the figure 6.15 in which artificial kidney figure is given. Okay, तो इसमें भी वही सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तरीका क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, डायलिसिस की नौबत क्यों आ जाती है? सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई डायलिसिस, वाई नॉट एनी अदर लिसिस, why dialysis? Sometimes accidentally or due to any reason, the blood supply which goes to our kidneys, यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया है, ये रीनल आर्टरी है, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ये रीनल वेन है, ये रीनल वेन है। रीनल वेन क्या कर रही है, ये इस सिस्टम से इम्प्योर ब्लड को, यानी कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जिसके भीतर यूरिया है, यूरिया जेनेटेड ब्लड को ये कैरी करके ले जा रही है हार्ट की तरफ, टूवर्ड्स द हार्ट। दिस इज रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी इज दैट आर्टरी which supplies the blood inside the Bowman capsule, inside the Bowman capsule, okay, inside the nephron, renal arteries. तो होता क्या है कि sometimes accidentally or due to any other reason, suppose this artery get injured, either it get injured or the blood present inside it become clotted due to any reason. अब क्या होगा, रीनल आर्टरी में ब्लड क्लॉट कर गया या हमको कोई इंजरी हो गई उसी जगह पे, तो यहाँ से ब्लड आगे की तरफ नहीं फ्लो होगा, यानी कि ये जो प्योर ब्लड लेके आ रहा था यहाँ से आगे की तरफ नहीं फ्लो होगा, नेफ्रॉन की तरफ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिल्टर नहीं होगा तो क्या नुकसान है, नुकसान ये है कि इससे पहले जो भी आर्टरी की सप्लाई जहाँ से भी आ रही थी या वेन की सप्लाई यहाँ से जहाँ भी आ रही थी, वो क्या होगा कि ब्लड बिना फिल्टर हुए ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। और जब विदाउट फिल्टरिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो ब्लड अगर फ्लो करने लगे हमारी पूरी बॉडी में, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी और जो डिजॉल्व फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कैरी करने की कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड की रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ब्लड प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर इट इज नीडेड। ब्लड प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल एंड ब्लड प्लाज्मा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग यूरिया, ठीक है, फ्रॉम बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द किडनीज। ओके, तो अब क्या होगा, उसी में तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाना चाहिए ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के, ब्लड प्लाज्मा पहले से कुछ डिजॉल्व रहेगा जिसकी वजह से वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कैरी नहीं कर पाएगा। और जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कैरी नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज ट्रेवल होकर के नहीं पहुंच पाया उस सेल के भीतर। ओके, अंडरस्टूड? So this is the reason behind that sometimes due to accident, due to any injury, due to any other reason, unknown reason, sometimes the normal blood flow inside the renal artery become abnormal. Okay, or sometimes the blood flows inside the renal artery become clotted at that point. So due to this, there is no blood supply towards the unit of excretion, that is nephron. If there is no blood supply in nephron, then
the activity, the function of kidney is affected होगा function, as a result of which the nitrogenous waste material supply gone throughout the body, no energy release, and ultimately death of the patient occurs. ज़्यादा देर तक अगर ये एक्यूमुलेट रह जाए पूरी बॉडी के भीतर यूरिया, तो उससे अल्टीमेटली, आपके बुक में भी मेंशन है ये, अल्टीमेटली रीनल फेल्योर और डेथ ऑफ द पेशेंट ऑकर्स. ओके, so students, this is all about renal failure, this is all about hemodialysis. Hemodialysis is done, the basic concept of hemodialysis is simple diffusion process. Okay students, revise whatever we have studied in excretion, revise the ultrastructure of nephrons. Okay, prepare your question answers. If you are having any problem, then I am here. Okay, thank you class 10th, thank you.